Welcome students, my name is Tarun Sachdeva. This is my lecture 8 on basic element of mechanical engineering, and we were discussing the concept of thermodynamics. In that today I am going to take some examples based on the concept that we have learned till now from the first law of thermodynamics for open system and closed system. Okay, so before starting my video, my lecture today, I request you to follow us on Facebook, Twitter, and our YouTube channel. Okay, so let us start today's lecture, and in that we will be discussing some of the numericals. And this numerical I have taken such a way that you can understand, you can better understand the concepts that we have learned, the theories we have learned in respect of first law of thermodynamics, that can be of closed system or open system. So it is very important to understand this thing, that theory, always we have to be clear about theories to solve the numericals. Okay, without theory you cannot solve the examples correctly. Okay, so if you have to solve numerical, you have to better command on the solution of numerical. Then you have to be very clear on the theory part. Okay, and such in such a way, in this process, while solving the numericals you will also understand the theory part in a better way. Okay, you will grasp those concepts in a better way. So it is very important to understand and solve numericals through your by your hands only. Okay, so please try to solve these numerical in such a way that you can do one thing. uh, Before starting the lecture, you can pause the video and first you can solve this numerical by yourself. Okay, as you solve, as in this process you are solving the example, you may stuck somewhere. Okay, then you can start and look your notes. Okay, you can refer your notes and check whether where you are stucking. If you cannot solve after that also, then you can start the video lecture and you can see the solution which I am doing in this video lecture. Okay, so this might help you to solve the example, to better understand the concepts of first law of thermodynamics or other topics also. Okay, so please try to maintain this strategy. This will help you very well and better give you better idea how to solve or how to check yourself that where you are stucking. Okay, where you are getting difficulties. Okay, कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा. और देन जैसे ही आपको सपोज आप वहां स्टक हो जाते हैं, तो आप जब वीडियो दोबारा से स्टार्ट करेंगे, देन यू विल फाइंड दैट ओ आई हैव मिस्ड दिस कॉन्सेप्ट. then you will remember that concept for a long time. Understand? So let us start solving this first numerical, which says that a mass of 8 kg gas expands within a flexible container, so the PV relationship is of form of PV की power 1.2 is equals to constant. The initial pressure is this and the volume initial is this. The final pressure is this. If the specific internal energy of the gas decrease by this amount, find the heat transfer in magnitude and direction. So by reading this statement very carefully, you have to first be clear that which concept this numerical is based on. Okay, as you can see, the gas is going through a process in which the properties of the gas is initially this and then finally it reaches to this. So if the state is changing of the gas, then it is very clear that it goes through a process. Okay, so if it is goes through a process and numerical is wanting, it is demanding that please find out what is the heat interaction. So it is the energy balance of the gas for a process. So what concept it is based on? It is based on the first law of thermodynamics for a process, for a what?
it is in container. Okay, so it is gas is in container, so there is no mass interaction, only heat interaction, so it is based on closed system. That is also very important, because then only we can apply which equation we have to use. Okay, so first of all what we'll do, we write the given values. हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, given values को लिखेंगे. Initial pressure को हम बोलेंगे P1, that is 1000 किलो पास्कल. Then initial volume को क्या बोलेंगे हम, 1 मीटर क्यूब, that has to be cube, sorry, there is typo error. Initial volume is 1 meter cube, because volume has to be in meter cube. Then final pressure, that is P2, 5 kilo pascal. Okay, if the specific internal energy of the gas decreases, it means the internal energy of the gas is decreasing. If I have to write the change in internal energy, then it should be negative. Why? Because the internal energy of the gas is decreasing. That is how I can write it is negative. And what relationship it is follow, it this process follows, it is PV की power 1.2 is equals to constant. It means, what it means, we have also understood in previous classes, that is P1 V1 की power 1.2 is equals to P2 V2 की power 1.2. That is the relationship that it follows. Okay, now we have to find what, we have to find the heat transfer. Okay, so we have to find heat transfer. Please be clear in this, that heat, if a process is taking place, then the energy interaction can take place in the form of heat and work. Okay, and there is we cannot say that the heat is changing. Okay, because heat is transferring. That is why this word is very important in terms of technical or the conceptual of heat or energy interaction. Okay, so we have to use heat transfer. And on the other hand, internal energy is changing, because the internal energy is the property of the system. Okay, and system is gas, so the property of the gas is changing in during this process. Okay, so we are denoted this by Q. After writing everything, we have to analyze this. This is based on what? First law of thermodynamics. Of for a process. क्लियर, इट इज फॉर अ प्रोसेस. अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, अभी जब इनिशियल स्टेज में हम हैं, तो ये सब चीजें मैं बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, और यहाँ पे आपको सब कुछ लिखकर बता रहा हूं. आपको जब ये न्यूमेरिकल्स आप ड्यूरिंग द प्रोसेस आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो आपको आदत हो जाएगी. यू डोंट हैव टू राइट दिस थिंग दैट इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, as you will read the statement directly in your mind after the practice, after solving so many of questions, you will directly understand that this is based on this concept. तो आपको एकदम से इतना सोचना नहीं पड़ेगा, है ना, तो that will be very easy for you, but it is after only doing so much of practice, solving after so many of questions. Okay, so first law of thermodynamics for a process. For a process, what first law of thermodynamics says, क्या इक्वेशन होती है, that is Q will be equals to delta U of the system plus W. It means the heat interaction is equals to the change of internal energy of the system and the work done by the system, because we have taken this as a positive. Okay, अगर वो वर्क इनपुट होगा तो हमें उसकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव पुट करनी पड़ेगी, ये बहुत क्लियर है ना. सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, Q फाइंड आउट करना है, डेल्टा U दिया है, W है क्या हमारे पास, we have one equation, we have two unknowns, so first of all we need to find W, तभी हम Q फाइंड आउट कर पाएंगे. तो W कैसे फाइंड आउट करें, दिया है a mass of 8 kg gas expands, so it is expanding, so we know
the relationship or the process which follows is polytropic process. It's a polytropic process and n is 1.2. So we can apply directly for polytropic process. The work done is given by what? P2 V2 minus P1 V1 by 1 minus n. As in many in every case n is more than 1, we can write this n को इधर अगर हम लिखें तो we can write this as P1 V1 minus P2 V2 by n minus 1. क्या किया, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, उस माइनस की मल्टीप्लीकेशन ऊपर की, तो ये P1 V1 minus P2 V2 हो गया. ओके, सो वी कैन राइट दिस एज वी नो. अब हमें चेक करना है कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं. हमारे पास P1 है, V1 है, P2 है, बट V2 है क्या? नो, वी डोंट हैव V2. सो V2 फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? यस, बिकॉज वी हैव दिस रिलेशनशिप. So using that relationship for the process, then we can write P2 V2 will be equals to, P2 P1 will be equals to V1 and V2 की पार. अगर यहाँ पे 1.2 था तो I can write 1.2 like this. Yes, or we need to find V2, so directly we'll take that P1 upon P2 की पार 1 upon 1.2 into V1. Okay, so that is how we can find out the value of V2. So V2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए we need to write all the values. 1005 यूनिट चेक करना बहुत जरूरी है, दैट ये भी किलो पास्कल में है और ये भी किलो पास्कल में है, तो वी डोंट हैव टू राइट ऑल दी 1000 टर्म, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा. देन V1 is 1, so that is 1. So V2 comes out to be 1000 divided by 5 की पार 1 divided by 1.2. So it is 82.7. As you can see, the volume of the, you can see here, it is expanding. So expand means the volume will increase, and by checking the value of volume you can also see that the volume is increasing. So it is very clear that you have calculated the right value. Okay, so V2 is this. Now you can find out the value of W. So W will be P2 P1 V1, that is P1 is 1000 into 1 minus P2 V2. P2 is 5 into 82.7 divide by 1.2 minus 1. So it will comes out to be 1000 minus 5 into 82.7 divide by 0.2. So it is 2932.5, that is kilojoule. It comes out to be in kilojoule. As we know 1000, this pressure is in what? किलो पास्कल. सो हमने जो वो उसको किलो पास्कल में लिया, उसकी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, तो वो अपने आप ही किलो जूल में आएगा. क्लियर? सो दिस इज द वर्क आउटपुट. नाउ यू कैन फाइंड आउट by the first law of equation that Q will be equals to delta U plus W, and delta U is what? Decrease. In this case it is decreased. Yes, and the value is in, please see this is in per kilojoule, so we have to multiply by 8. So 8 minus 8 into this is 40. I have taken this value in kilojoule, so किलो में ही फाइनल आंसर आएगा. माइनस क्यों लिया? बिकॉज ये डिक्रीज हो रहा है ना. सो माइनस 8 into 40 प्लस 2932.5. अच्छा, एक चीज और यहाँ पर चेक करें कि दिस W comes out to be in positive. So positive means this work has been done by the system, and it is very clear कि एक्सपेंड गैस हो रही है, तो इसका मतलब वो वर्क किसको?
एक्सपेंड कर रही होगी, है ना, एक्सपेंड कर रही होगी तो वर्क वो आपको दे रही होगी, तो सिस्टम वर्क कर रहा होगा. सो दैट इज हाउ यू कैन राइट द वैल्यूज. नाउ दिस कम्स आउट टू बी माइनस this 2.5 kilojoule. So this is the amount of heat that is transferred, and the value comes out in positive. अगर वो पॉजिटिव में आई है तो उसका मैग्नीट्यूड तो वो हो गया, और डायरेक्शन क्या हो गई, द डायरेक्शन विल बी द हीट, दिस अमाउंट ऑफ हीट given to the system is gas. So gas. So this amount of heat is given to the gas. That is how you can solve the numeric. Okay. So final answer will be the magnitude of heat transfer is, that is Q is what, 2612.5 unit will be kilojoule, and the direction is heat transfer to the system. System means gas. Clear? So that will be your final answer. Next, we'll take another example, that is a piston cylinder device initially contains air at this pressure and temperature. At this state, the piston is resting on a pair of stops as shown in figure, and the enclosed volume is this. The mass of the piston is such that this amount of pressure is required to remove it. The air is now heated until its volume has doubled. Determine a first final temperature, the work done by the air, the total heat transfer to the air. So that is what we need to find out. Okay. क्या गिवन है कि एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जिसमें पिस्टन इनिशियली दो स्टॉपर्स हैं. दीज आर द स्टॉपर्स मतलब यहां पर ये पिस्टन रेस्ट कर रही है, यहां पर ये रुकी हुई है इनके सहारे, ठीक है, इनके ऊपर ये रुकी हुई है. ओके. नाउ एट दिस पॉइंट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और दिस एनक्लोज्ड वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ द एयर इज दिस. द मास ऑफ द पिस्टन, क्या कह रहा है कि इस पिस्टन का मास इस तरह से है कि इसको यहां से लिफ्ट करने के लिए एयर का जो इनिशियल प्रेशर है दैट इज 150. वो प्रेशर जब तक 350 ना हो जाए, वो प्रेशर जब तक 350 ना हो जाए, ये पिस्टन यहां से नहीं उठेगी. ओके. इट मींस 150 से लेके 350 प्रेशर रीच करने तक आप 150 से बढ़ाने लगे प्रेशर को, और जब आप 350 पर पहुंचेंगे तब ये पिस्टन यहां से लिफ्ट करना स्टार्ट होगी. ओके. एंड इन सच केस क्या हुआ, द एयर इज नाउ हीटेड अंटिल द वॉल्यूम हैज डबल्ड. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एयर को इतना हीट किया गया, इस एयर को इतना हीट किया गया कि ये जो वॉल्यूम है ये फाइनली डबल ना हो जाए, है ना. यानी कि अभी 400 लीटर है तो फाइनली ये तब जाके रुकेगा जब 800 लीटर, यानी कि यहां पे स्टेट 1 है. then the second state will be of the air when the volume reaches to the this value, that is V2 will be 2 times of V1. Okay. So first we will write the given values. Again you can understand that this is based on what, the first law of thermodynamics analysis, and for a closed system. ये कौन सा सिस्टम है, इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम. ओके. क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है, मास का कोई इंटरेक्शन नहीं है बाउंड्री से बाहर, तो एयर को जब हम
सिस्टम बना लेंगे अपना. दिस इज आवर सिस्टम, दिस इज आवर बाउंड्री, ओके, एंड दिस इज आवर क्लोज सिस्टम. ओके, नाउ first given values, the initial properties of the air, that is pressure 150 kilopascal, initial temperature that is 27 degrees Celsius. At this state the volume of the air is 400 liter. We can write it as 0.4 meter cube. Why? By dividing 1000. एक 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो वो मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा. Okay, now the mass of the piston in such that the pressure reaches to this. ये कौन सा होगा, P2 पे ये होगा कि नहीं, अभी इसको चेक करेंगे. The air is now heated until its volume gets double. So V2 will reach to what? Final volume will reach to what? 800 liter. Okay, 400 था तो 800 हो गया. We can write it 0.8 meter cube. Sorry, that is meter cube. Clear? Now we need to find part A, the final temperature, the volume, the work done, the total heat transferred to the air. So हमें टेम्परेचर फाइनल यानी कि T2 फाइंड करना है. We need to find work done during the process 1 to 2. Then we need to find out the heat transfer during this process Q12. Understand? Then analysis says that it is based on first law of thermodynamics. For closed system. Again it's a for a process. Yes. Now we need to do what? First calculate the final temperature. T2 कैसे find out करेंगे? Okay, so T2 find out करने के लिए we know air is our system, so we can apply P2 V2 is equals to MR T2. Yes, we can apply this, है ना. तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. हमारे पास क्या क्या है? Do we have P2? Do we have P2? No, till now we don't have. V2 we have that. M we don't have. मास क्या हमारे पास डायरेक्टली मास दिया है? नो. T2 हमें फाइंड आउट करना है. R की वैल्यू एयर के लिए हमें पता है. ओके, अब हम इसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं वो चेक करते हैं. P2 को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? P2 इज व्हाट? द फाइनल प्रेशर. यस, यस. सो इसने क्या दिया? वी हैव दैट, ये एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जिसमें एक पिस्टन है और इनिशियली ये क्या कर रही है? ये स्टॉपर्स पे रेस्ट कर रही है. यस और नो? और यहां पे प्रेशर 150 किलो पास्कल है. अब प्रेशर 150 है यानी कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एयर पार्टिकल्स जो है वो प्रेशर इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे. यस और नो? यस और नो? यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे. और अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस टाइम पर बनाऊं, then what will be the free body diagram such that यहां पर जो फोर्स अप्लाई है ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस फोर्स अप्लाई ड्यू टू दी मास और सॉरी वेट, वी कैन राइट दैट इज वेट ऑफ द पिस्टन. और कोई फोर्सेस है? नो. यस, एट दिस साइड there are forces which is pressure. So, मैं इसको ऐसे लिखता हूं F, the force applied by the air. yes, इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा, फोर्स कैसे आएगा? ये प्रेशर डिवाइड बाय एरिया ऑफ द पिस्टन, है ना. तो मैं उसको अभी F से, F एयर से डिनोट करता हूं. और एक और फोर्स आएगा जो कि क्या होगा? दैट विल बी दिस फोर्सेस, द रिएक्शन ऑफ द फोर्सेस at the contact surface between the stoppers, है ना. ये भी आएंगे. तो ये स्टॉपर्स की वजह से फोर्स आएगा. एट दिस पॉइंट अगर ये पिस्टन यहां पे रेस्ट कर रही है, मूव नहीं कर रही, स्टैटिक है, तो ये सारे फोर्सेस का समेशन एक दूसरे के बराबर होगा. यस और नो? नाउ व्हाट विल हैपन?
उसने कहा कि इस पिस्टन को यहां से आपको लिफ्ट करना है, इसको लिफ्ट करना है। ये क्या है? स्टेट वन, स्टेट वन एफबीडी ऑफ पिस्टन। यस, ये पिस्टन का एफबीडी है। अगर मैं स्टेट टू पर एफबीडी बनाऊं, स्टेट टू पर बनाऊं तो कैसे बनेगा? पहले तो इसको समझो कि स्टेट टू पर ये कांटेक्ट में है क्या? नो, स्टेट टू इज दिस एंड स्टेट वन इज दिस। सो स्टेट टू पे स्टॉपर से उठ गई, और स्टॉपर से उठने का कंडीशन क्या है? दैट एयर हैज टू अप्लाई अ प्रेशर विच इज 350 किलो पास्कल। जब तक एयर 350 किलो पास्कल प्रेशर अप्लाई नहीं कर लेगी, जब तक 350 के कॉरस्पॉन्डिंगली फोर्स अप्लाई नहीं करेगी, पिस्टन ऊपर लिफ्ट नहीं करेगी। और जैसे ही यहां पर 350 प्रेशर हो जाएगा, ये कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, पिस्टन विल लिफ्ट एंड नाउ देयर इज नो मोर कांटेक्ट। सो कांटेक्ट नहीं रहेगा तो ये फोर्सेस नहीं रहेंगे। यस, जैसे ही कांटेक्ट लिफ्ट ब्रेक हो जाएगा तो ये फोर्सेस नहीं होंगे। तो मैं अगर इसका एफबीडी बनाऊं, so if I'll do when state not, this is not at state 2, this is not at state 2, when piston just lifted, मतलब जैसे ही पिस्टन जरा सा स्टॉपर से लिफ्ट की, या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं कि जैसे ही एयर का प्रेशर 350 हुआ, एज द प्रेशर रीचेस from 150 to 350, the piston just lifted and this forces goes away, है ना? ये फोर्सेस चले जाएंगे, ये फोर्सेस चले जाएंगे तो क्या फोर्स बचेगा? अगेन दैट एफ एयर एंड द फोर्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्लस एफ डब्ल्यू। यस और नो? अब ये जस्ट लिफ्टेड पे है। अगर मैं स्टेट टू पर ये स्टेट टू पर पिस्टन का डायग्राम बनाऊं तो क्या कोई चेंज आएगा क्या? विल देयर बी एनी चेंज इन दिस एफबीडी? नो। व्हाई? बिकॉज दिस फोर्स इज नॉट चेंजिंग। व्हाई इट इज नॉट चेंजिंग? ये प्रेशर 350 से कम या ज्यादा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो फोर्स है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है वो फिक्स है, एरिया फिक्स है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? पी एटमॉस्फेरिक के बाय एरिया के ऑफ द पिस्टन। ना तो ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा, तो ये भी चेंज नहीं होगा। सिमिलरली वेट चेंज होगा क्या? पिस्टन का वेट चेंज होगा क्या? नो, इट कैन नॉट चेंज। यस, वेट सेम रहने वाला है, चाहे कहीं पे भी ले जाओ पिस्टन को। यस और नो? यहां पर हो या स्टेट टू पर हो, तो दिस, बिकॉज दिस रिएक्शन, द एक्शन विल नॉट चेंज, हाउ कैन रिएक्शन बी चेंज? ओके, सो दैट इज व्हाई during when the piston just lifted from the stopper, this piston goes to volume this P2 and the pressure will remain constant. प्रेशर क्या रहेगा यहां पर? कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर ड्यूरिंग जस्ट लिफ्टिंग ऑफ द पिस्टन to the state 2, volume reaches to double, the pressure will remain same. Which value? This final pressure will reaches to 350 kilopascal. So that is the concept which is used in this. Okay, so final pressure will reaches to P2. अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करिएगा और इसको दोबारा से सुनिएगा, ठीक है? और आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर जब तक नहीं हो आप इसको मत छोड़िएगा, बार बार सुनिएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे प्रेशर प्रेशर कब चेंज करेगा इस चीज को यहां पर समझ लीजिए। देखिए, ये प्रेशर तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स चेंज ना करें, कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई ना करें। जब तक एटमॉस्फेयर प्रेशर और वेट और दी पिस्टन रहेगा तब तक प्रेशर कभी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर एक्शन ही चेंज नहीं हो रहा, तो रिएक्शन विल नॉट चेंज। अंडरस्टैंड? So final pressure will reaches to 350. Now we need to find out what? Mass of the air. Mass of the air हम क्या? Mass constant होगा, 1 पे हो चाहे 2 पे हो, तो mass constant होगा तो क्या मैं P1 V1 by R T1 लगा सकता हूं? यस, इनिशियली कितना मास था? इनिशियली P1 की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 150 किलो पास्कल एंड T1 270 डिग्री सेल्सियस, तो 150
किलो पास्कल, 1000 मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूं, V1 इज 0.4 मीटर क्यूब, देन R 0.287। मैंने यहां पर 150 के साथ 1000 की मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करी क्योंकि यहां पर भी 1000 आएगा R के साथ, तो दैट विल कैंसल, वी नीड नॉट टू राइट। सो T1 इज व्हाट 27 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या होगा 300 केल्विन, 273 प्लस 27 केल्विन में कैलकुलेट करने के लिए, और टेम्परेचर किस में रखना है हमेशा, केल्विन में। सो सॉल्व दिस वैल्यू, 150 इंटू 0.4 डिवाइड बाय 0.287 into 300, so it will comes out to be 0.6969, that is kg। ओके, अब इसी की वैल्यू को अगर हम वहां पे पुट करें तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, देन T2 विल बी P2V2 बाय mR, क्लियर। सो P2 is what 350, again volume is 0.8, then mass is 0.6969 into 97, ठीक है। 350 into 0.8 divide by 0.6969 into 0.287, so it will comes out to be around 1400 Kelvin, 1400 Kelvin, यूनिट क्या रहेगी, केल्विन, क्लियर। सो दिस इज द फाइनल टेम्परेचर व्हेन यू आर हीटिंग दिस एयर एंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर विल गेट डबल। ओके, सो ये फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है द वर्क डन, वर्क डन विल बी व्हाट, सो वर्क डन we need to write B part, that is work done during the process, that is 1 to 2। 1 to 2 क्या है, स्टेट, ये पिस्टन हमारी थी, अगेन आई एम ड्रॉइंग द सेम डायग्राम। यहां पर पिस्टन थी इनिशियली, ये स्टॉपर, और इस स्टेट से, स्टेट 1 से स्टेट 2 में रीच करने में कितना वर्क पिस्टन ने, एयर ने किया, है ना, एयर ने कितना वर्क किया, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। उसको हमने डिनोट किया है W1 to 2 से। अब अंडरस्टैंड करें प्लीज, जब प्रेशर, मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस तरह से, दैट पहले क्या हुआ, स्टेज 1 क्या थी, स्टेज 1 थी कि एयर जो पिस्टन है वो इनिशियली वॉल्यूम पे थी V1 पे, दैट इज 0.4 मीटर क्यूब, और उस समय प्रेशर इनिशियली कितना था, दैट इज 150 किलो पास्कल। अब इसको हीट करना शुरू किया, यस, हीट इनपुट दी, इसको हीट किया, हीट करने की वजह से इस पिस्टन, इस एयर का टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज करना शुरू हुआ, प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हुआ, तो प्रेशर 150 से इंक्रीज करना शुरू हुआ। सपोज ये रीच किया 200, तो ये पिस्टन यहां से लिफ्ट नहीं की होगी, क्योंकि पिस्टन को लिफ्ट करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए, 350। सो नाउ इट रीचेस टू व्हाट, 300, है ना, 300 पे भी ये लिफ्ट नहीं करेगी, इसी स्टेट पे रहेगी, देन इट रीचेस टू 350, जैसे ही 350 पे पहुंचा तो यहां पे पिस्टन लिफ्ट किया, यस और नो। सो ये 150 से 350 तक पहुंचने में पिस्टन की पोजीशन, piston will not move, if piston will not move, then the volume of air will also not change, है ना, वॉल्यूम जो है एयर का वो भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि पिस्टन यहीं पे है, मूव ही नहीं की, तो एयर का वॉल्यूम चेंज करेगा क्या। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज द प्रोसेस follows will be, the process will be
what? Constant वॉल्यूम प्रोसेस। वाई? जब तक आपने हीट दिया और तब तक जब से आप हीट देना स्टार्ट किए और 350 किलो पास्कल प्रेशर जब तक नहीं पहुंचा, उस हीट को आपने किस किस प्रोसेस में से दिया? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस से दिया। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस से दिया तो वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज विल बी व्हाट? इट विल बी जीरो। नाउ वर्क डन ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जैसे ही प्रेशर 350 पहुंचा, when pressure reaches to 350, this piston just lifted and contact between the piston and stopper will break. तो ये पिस्टन अब तब तक हीट, अभी भी हीट आप दे रहे हो, अगर अभी भी आप हीट दे रहे हो तो पिस्टन कहां पर रीच की? स्टेट 2 पर। तो फ्रॉम दिस लिफ्टेड स्टेट विच इज आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय इंटरमीडिएट आई टू स्टेट 2, आई से स्टेट 2 तक पहुंचने में प्रेशर क्या रहेगा? ये हमने लास्ट में समझा, प्रेशर विल बी कांस्टेंट। सो ये हीट किस प्रोसेस में गई? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में गई। कांस्टेंट प्रेशर आई से 2 तक, इंटरमीडिएट स्टेट से 2 तक पहुंचने में कांस्टेंट प्रेशर कितना रहा? P2। वॉल्यूम कितना चेंज हुआ? V2 माइनस VI, और VI क्या है? V1। तो कितना वर्क हुआ? P2 कांस्टेंट प्रेशर के लिए वर्क इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क प्रेशर कितना है? 350। वॉल्यूम कितना है? 0.8 माइनस 0.4। सो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? 350 into 0.4, so that is 140 kilojoule of work is done। और टोटल वर्क किसके बराबर है? टोटल वर्क done during this process, that is 1 2, is work during first stage plus work during second stage। so ये किसके बराबर हो जाएगा? सेकेंड स्टेज के, that is 140 किलो, क्योंकि ये तो जीरो है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। अच्छा यहां पे लिख देते हैं हम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड इन दिस फॉर बोथ द प्रोसेस, है ना। देखो इसमें दोनों प्रोसेसेस को यूज करके हमने एक ही प्रोसेस करा है ना। कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम फॉलो किया, फिर कांस्टेंट प्रेशर फॉलो किया। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द टोटल heat transfer. If we need to find out total heat transfer, so C part is heat transfer. So total heat transfer Q12 again will be what? Q in first stage plus Q in second stage, यानी कि Q in first process which is constant volume process and Q in second process which is कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब ये क्या है? एयर है, यस और नो? अगर ये एयर है और आइडियल गैस है तो फर्स्ट प्रोसेस में Q1 क्या होगी? वॉल्यूम प्रोसेस में है तो अप्लाई करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज डेल्टा U प्लस W, and in this process volume is constant, so this is zero, so it is equals to delta U। अगर ये डेल्टा U के बराबर होगी, और डेल्टा U एयर के लिए, आइडियल गैस के लिए क्या होती है? मास इंटू CV इंटू डेल्टा T, T2 माइनस T1। सॉरी, दिस T2 हैज टू बी व्हाट? T इनिशियल, सॉरी इंटरमीडिएट। ये क्या है? ये किस प्रोसेस के लिए है? फर्स्ट वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए। तो उसके दौरान टेम्परेचर इंटरमीडिएट फाइंड आउट करना पड़ेगा, यस और नो? वी नीड टू फाइंड इंटरमीडिएट टेम्परेचर सो दैट हम यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर पाए। तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर कैसे मिलेगा? इट इज वेरी अगेन सिंपल, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो T इंटरमीडिएट, T क्या होता है? प्रेशर बाय टेम्परेचर फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज कांस्टेंट। सो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? P1, वी नीड टू फाइंड दैट P इंटरमीडिएट, सो P इंटरमीडिएट बाय
P1 will be equals to what? T intermediate upon T1. Yes or no? ये अप्लाई किया जा सकता है. सो इसके थ्रू अगर हम T इंटरमीडिएट फाइंड आउट करना चाहें तो P क्या है? दैट इज 150, देन 350, देन 150 इंटू T1 दैट इज 300. सो ये टेम्परेचर क्या आ जाएगा? ये वो टेम्परेचर है जिस पर वो हमारी पिस्टन जो है वो लिफ्ट कर गई, दैट इज 700 केल्विन. उसकी वैल्यू को यहां पे पुट करें आप, तो Q इंटरमीडिएट विल, मास कितना था? मास हमने इनिशियली फाइंड आउट किया 0.6969 इंटू CV 0.717, ये हमें पता है. देन 700 माइनस इनिशियल 300. सो ये हीट इनपुट हो जाएगा 969 इंटू 0.717 इंटू 400. So it is approximately 199.87 kilojoule. This heat is transferred during constant volume process. Next, Q2. Q2 will be what? Again, delta U, change of internal energy of the air, plus W. Yes, W हमको पता है. Delta U again we can write MC into delta T. So Q आ जाएगा MC V delta T कहां से कहां तक? T2 माइनस T इनिशियल, प्लस वर्क इज 140 और इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव. यस और नो? ये वो प्रोसेस है ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. कितनी हीट गई ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर? जैसे ही पिस्टन ने लिफ्ट किया और स्टेट 2 तक गई तो कितनी हीट आपने उसको दी होगी? ये वो हीट है 0.9697 1400 minus 700 plus 140. So this is the amount of heat that is goes to second stage, second process. So ये कितना हीट गया? 489.77 किलो जूल of heat is given in second process. So total heat Q1 Q2. Q1 is 199.87 plus 489.77. So it is comes out to be plus 199.87. So it is approximately 689.64 kilojoule. So this amount of heat is given to the air from volume 0.4 to volume 0.8. Understand? So ये total heat आपने उसको दी होगी. As in this one thing you can also do, this is the total heat. Okay, now this can also be calculated with the using a single process. How? That see this, that the process follows like 1 to 2. 1 to 2 मतलब ये इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है. तो इंटरमीडिएट स्टेट को अगर मैं हटा दूं, है ना, इंटरमीडिएट स्टेट को ना लूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? आई कैन अप्लाई दी फर्स्ट लॉ इन दिस प्रोसेस. सो Q ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस यानी कि 1 to 2 विल बी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी फ्रॉम 1 to 2. ओके, प्लस W 1 to 2. ओके, और Q 1 to 2 हमें इंटरनल एनर्जी क्या है? प्रॉपर्टी है. वो पॉइंट वो उसकी स्टेट पे डिपेंड करती है ना, पाथ से डिपेंड नहीं करता, है ना. तो वी कैन डायरेक्टली टेक MCV द टेम्परेचर T2 माइनस T1, डायरेक्टली T2 माइनस T1, इंटरमीडिएट स्टेट को हटा दिया 1 to 2. एज वी नो 0.6969 इंटू 0.717, जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे
ये कितना हो जाएगा 1400 माइनस 300 प्लस 140। यस 140 क्या है वर्क। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एयर एक्सपेंड हुई है, वर्क मिला है सिस्टम से। सो दिस अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दी सेम आंसर जो आंसर हमने यहां पर गेट किया। क्लियर। सो डायरेक्टली यू कैन यू डोंट हैव टू गो टू दिस स्टेप्स। ये मैंने इसलिए समझाया कि दोनों प्रोसेस भी आपके क्लियर हो जाएं, कैसे हीट कैलकुलेट करते हैं, बट यू कैन यूज दिस ऑल्सो। ओके। अच्छा, अगर हम इस प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे शो करना चाहें, इफ यू वांट टू प्लॉट दिस प्रोसेस 1 to 2 ऑन पीवी डायग्राम, कैसे प्लॉट करेंगे देखो। द इनिशियल स्टेट वाज क्या था कि वॉल्यूम V1 था और प्रेशर P1 था, और वॉल्यूम V1 के टाइम पे अगर सपोज करो दिस इज द वॉल्यूम V1 एंड दिस इज द प्रेशर P1, ये कितना हो 150 एंड ये 0.4, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक पॉइंट होगा, दैट विल बी दिस। यहां से स्टेट क्या लोकेट हुई 1। so that is how we can use the property to locate or fix the state of the system or the air, है ना। यहां स्टेट फिक्स कर दिया। नाउ 1 to इंटरमीडिएट, अब प्रेशर कितना पहुंचा, जैसे ही लिफ्ट किया तो प्रेशर कितना पहुंचा 350, दैट इज P2। 350 पहुंचा ना तो वहां तक हमारा प्रोसेस क्या फॉलो किया, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, पिस्टन ने मूव नहीं किया, तो प्रोसेस क्या फॉलो किया, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी वर्टिकल, है ना, और ये V1 विल बी इक्वल टू V इंटरमीडिएट एंड दिस इज द इंटरमीडिएट। जैसी वो लिफ्ट की, है ना, आई रिप्रेजेंट द इंटरमीडिएट। नाउ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो वर्टिकल लाइन। अब क्या होगा, जैसी लिफ्ट कर गई तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम कितना एक्सपेंड करेगा V2, और V2 एक्सपेंड करेगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, राइट हैंड साइड जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इधर बढ़ रहा है, बैक तो नहीं जाएगा, है ना। तो कैसे जाएगा, लाइक दिस। सो दिस विल बी योर व्हाट, दिस इज स्टेट 2। स्टेट 2 क्या होगा, ये, है ना, वॉल्यूम क्या होगा उस पे V2 और प्रेशर क्या होगा उस पे P2। सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द ग्राफ विच फॉलोज ऑन PV डायग्राम, और एरिया अंडर दिस कर्व विल गिव यू द वर्क डन। ये किसके बराबर है, this is W12। as you can see in 1 to intermediate, this the area under this line is 0, so that is why work during this process is also 0। so that is how you can draw the PV diagram also of different processes। clear। let us take another example। A gas undergoes a thermodynamic cycle consisting of three processes, beginning at the initial state where P1 is this, volume is this, internal energy is this. The process are as follows. First process 1 to 2 compression, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉलो कर रहा है और P2 और U2 की वैल्यू दी है ना। प्रोसेस 2 to 3 दिया है जिसमें वर्क डन 0 है और हीट का इंटरेक्शन है। 3 to 1 दिया है, वर्क का इंटरेक्शन है, और ड्यूरिंग दीज ऑल प्रोसेस चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेग्लेक्टेड। डिटरमाइन द हीट इंटरेक्शन ड्यूरिंग दीज प्रोसेस। क्लियर। writing the given values, given is what, a gas undergo a thermodynamic cycle। क्या 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 है, ये साइकिल के अंडर है ना। सो साइक्लिक प्रोसेस है कंसिस्टिंग ऑफ थ्री प्रोसेस। कितने प्रोसेस से, थ्री प्रोसेसेस से। बिगिनिंग इनिशियल स्टेज क्या है, P1 इज 1 bar and V1 is 1.5 meter cube and initial internal energy is given also 12 kilojoule। दी प्रोसेस आर एज फॉलोज। पहला प्रोसेस क्या है, ये, है ना, और इन प्रोसेसेस के थ्रू एनर्जी और इंटरनल एनर्जी और सबका इंटरेक्शन उन्होंने दिया है। ठीक है। सो हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड दैट इज Q1 to 2, मतलब 1 to 2 प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितनी हीट का इंटरेक्शन हुआ।
सिमिलरली Q3 to 1, 3 to 1 मतलब अगेन इसमें कितना इंटरेक्शन हुआ, तो ये सब हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, सो ये क्या है प्रोसेस, दिस इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगेन, है ना। और साइकिल कंसिस्टिंग 3 प्रोसेसेस हैं, सब इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम्स दिया है। तो अब हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो वन बाय वन चलते हैं। फर्स्ट लेते हैं दैट Q1 to 2 फाइंड आउट करना है। अगर Q1 to 2 फाइंड आउट करना है तो अप्लाइंग फर्स्ट लॉ फॉर प्रोसेस लगेगा कि साइकिल लगेगा, प्रोसेस लगेगा। क्यों? क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं 1 to 2 का सिर्फ, और 1 to 2 में अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो वो एक प्रोसेस है, नॉट अ साइकिल। सो वी नीड टू फाइंड आउट 1 to 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी डेल्टा U फ्रॉम 1 to 2 प्लस W1 to 2, यही होगा। अब तक इस चीज को तो समझ चुके हैं। क्या क्या दिया है, डेल्टा U दिया है क्या, डेल्टा U मतलब क्या, U2 माइनस U1, U1 दिया है, यस, U2 दिया है, यस, सो ये वैल्यू हमारे पास है। W1 to 2 दिया है क्या, कंप्रेशन हो रहा है विद वॉल्यूम एंड प्रेशर मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट, यानी कि ये क्या प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस है और फाइनल प्रेशर दिया है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। नाउ let us find out the value of W1 to 2. So that will be work done during process 1 to 2, and this process follows PV is equals to constant. If it is so, then we know the work done during this process will be P1 V1, that is ln V2 by V1. As this process is PV is equals to constant, so the work done will become this. As we know, we don't have the value of V2, we have the value of P2 and we have the value of P1. So we can convert that value into P1 and in the form of pressure. So that will become P1 by P2. How this will come out? As we know, P1 V1 will be equals to P2 V2. So P1 V1 P1 upon P2 will be equals to V2 upon V1. So we can directly put the value of this here. Okay. So W12 will become what? By putting the values, P1 is 1 and that is 1 bar. Okay. 1 bar means 10, we can write it 100 into 10 or 3. 1 bar is basically 10 to the power 5 Newton per meter square. Okay, so we can convert this into kilo by multiplying 100. Okay, now 1.5 V1 is 1.5 and the ratio of this is 1 and 2. So we can directly take the value 1 and 2. Now finding this value will become ln 1 divided by 2 into 1.5 into 100 will give you minus 103.97 kilojoule. This will comes out to be in kilo because we have written the pressure in kilo. प्रेशर किस में है, किलो में है, तो जो वर्क आएगा वो किस में आएगा, किलो जूल में आएगा. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट Q1 to 2 and we have the value U2 and U1. U1 और U2 की वैल्यू हमारे पास है, so we can apply Q1 to 2 will be equals to what, U2 minus U1 because it's a change, so final minus initial plus W12. By putting the values, U2 is 690 and U1 is 690 and U1 is 1512
plus minus because it's a work which is in minus. So this comes out to be what? That is 690 plus 512 minus 103.97. So sorry, 690 plus 512 minus 512 minus 103.97. So it comes out to be 74.3 kilojoule. So this is the heat transfer during 1 to 2 process. Okay. Now next what we have to find? Q321, and Q321 will be equals to what? Q321 in process 1321. It's a 3 to 1 final to initial state. Then it will be, that is delta U321 plus W122. Oh sorry, W321. What are the given values? W321 दिया है और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये क्या होगा? 1 माइनस U3, U1 माइनस U3. ओके, सो ये बन जाएगा U1 माइनस U3. U1 हमारे पास है, U3 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. देन वी कैन यूज प्रोसेस 2 to 3 बिकॉज U3 फाइंड आउट करना है. और हमारे पास एक और प्रोसेस है विच इज 2 to 3 प्रोसेस, एंड 2 to 3 वर्क डन कितना है? 0 है, और हीट इंटरेक्शन -150 है. सो वी कैन राइट 2 to 3 will be equals to what? Delta, or I can directly write 3 final minus initial plus W2 to 3. Now we know this is 150 given. U2, U3 we don't have, U2 we have, that is 690, and plus this is 0. So U3 will become what? U3 will become 690 minus 150. So that is 540 किलो जूल. सो ये हमारी U3 आ गया. अब U3 को हम वहां पर पुट कर सकते हैं एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? That will give you Q31 will be U1 minus U3 plus W321, and we know this is 512, this is 540, just we have calculated, and plus 3 to 1 is what? That is given 50 value. Okay, positive 50. So we have to write positive 50. So this is 50. Now if we'll calculate this, what will it give you? Minus 540 plus 50. Okay, so it comes out to be 22 kilojoule. So Q31 will be 22 kilojoule. Okay, now so this is 22 kilojoule. Okay, so this is how that is how you can solve the numerical based on the concept given in first law of thermodynamics. Understand? Now we can proceed to next example. Yes, this is a very good example. It will help you to understand how the concept of work done can be applied in this. Okay, the air in a 10 centimeter diameter cylinder shown in heated until shown in figure, this figure, heated until the spring is compressed by 50 mm. Find the work done by the air on the frictionless piston. This is frictionless. The spring is initially unstressed as shown. Okay, so क्या है कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसमें यहाँ पर एयर है ना, सिलेंडर के अंदर, और पिस्टन का मास दिया है और एक स्प्रिंग है जो पिस्टन से अटैच किया है. ओके, एंड दिस स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट दिस पॉइंट. इनिशियली इस स्टेट पे क्या है कि स्प्रिंग जो है वो फ्री है. इट मींस कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है स्प्रिंग, है ना. एट दिस स्टेट स्प्रिंग इज नॉट अप्लाइंग एनी स्ट्रेस, एनी फोर्स ऑन दैट. नाउ व्हाट हैपेंस, it
the written is this is heated. Okay, this air is heated and it is given heat so that this piston comes to state 2, and in this process it compresses the spring by 50 mm. क्या हुआ, आपने एयर को हीट किया तो ये इसका प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि ये प्रेशर अप्लाई करेगा किस पे, पिस्टन पे, और पिस्टन किससे अटैच है, स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, है ना, और वो कंप्रेस कितना हुआ है, दैट इज 50 mm. तो जितना स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ है उतना ही पिस्टन मूव किया होगा, यस और नो. सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट of the piston is what, equals to the compression of the spring. Okay, given क्या है, diameter of the this piston is given, and the other things are given, that is compression, or we can say that this value can be written as spring displacement is x, which is represented by x. This is 50 mm, and this can also be this also be equals to what, piston जितना displacement हुआ piston movement वो भी यही होगा, है ना भाई, जितना पिस्टन मूव हुई होगी उतना ही स्प्रिंग कंप्रेस हुआ होगा. सो दैट इज हाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ spring displacement. Now to find, that is the work done, yes, work done by air. क्या चाहिए हमें, by air, एयर के द्वारा कितना वर्क किया गया, so it is work out by the system. Yes, next analysis. So what analysis says that, देखिए इसको अगर हम समझे अच्छे से तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन का एक फोर्स होगा जो उसकी वेट की वजह से है, यस, और एक फोर्स जो अप्लाई कर रहा होगा कौन, एयर. ये हमने पहले भी एनालिसिस किया है ना, पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है ना. तो ये क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये मैं इसको लिख देता हूं, द फोर्स अप्लाइड बाय द एयर ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द एयर, है ना. तो पिस्टन पे अप्लाई कर रहा है और इसका वेट भी होगा, और प्लस इसके साथ एटमॉस्फेरिक फोर्स भी होगा, है ना, एटमॉस्फेरिक के प्रेशर की वजह से. अब क्या था कि अभी तक तो क्या था कि ये दोनों तो चेंज नहीं होते, तो प्रेशर जो है, जो एयर का प्रेशर है ड्यूरिंग द प्रोसेस विल नॉट चेंज. बट अभी क्या कंडीशन है, इसके साथ एक फोर्स हो रहा है जो कि क्या है, स्प्रिंग फोर्स, एंड दिस स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द दिस स्प्रिंग, है ना. ये किसके इक्वल है, ये जितना डिस्प्लेसमेंट आप करोगे, जितना स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे उतना फोर्स बढ़ेगा. तो दिस वैल्यू इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, सो इट विल वेरी. if it will vary, then this pressure, the pressure inside the cylinder of air will not be constant. Okay, so pressure अभी तक तो कांस्टेंट था, है ना, the pressure will not be constant due to what, due to spring force, है ना, स्प्रिंग फोर्स. और स्प्रिंग फोर्स कैसा है, क्योंकि वो स्प्रिंग फोर्स क्या है, इट इज वेरिंग लीनियरली विद द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग और एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिंग, है ना. तो इसकी वजह से जो स्प्रिंग फोर्स है वो चेंज करेगा, तो उसी की वजह से हमारा जो प्रेशर है दैट विल आल्सो वेरी. नाउ वी विल सी द वेरिएशन ऑफ प्रेशर with respect to the volume. Okay, as earlier we have also explained that the force or the pressure, the force is varying with respect to the compression of the spring. Okay, now as the force is varying linearly with respect to the displacement or the distance, so the pressure will vary with respect to the volume linearly with the volume. Okay,
So if we want to plot the variation of or this process on PV diagram, हम क्या चाहते हैं कि हम इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस हुआ है 1 to 2, विच प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हुआ पिस्टन का एक्सपेंशन का ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस, हम इसको पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इनिशियल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल, है ना। सो अगर मेरे पास ये दोनों प्रॉपर्टीज, दोनों कोऑर्डिनेट हो या पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट हो, वैल्यू हो p और v की, so I can plot that. Let us consider that this is the value of v1 and this is the value of p1. इनिशियली जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो इस तरह से है। सो क्या है कि अब जो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यस, एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और जो अभी अगर ये स्प्रिंग नहीं होता, तो हमने क्वेश्चंस किए हैं पहले भी, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगर ये स्प्रिंग नहीं होता तो जो फोर्स, जो प्रेशर एयर का है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन विल रिमेन सेम, वो सेम रहता, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस तो चेंज नहीं होते। लेकिन क्योंकि ये फोर्स चेंज हो रहा है तो प्रेशर जो है वो वेरी करेगा। और प्रेशर कैसा वेरी करेगा, प्रेशर विल वेरी लीनियरली विद द चेंज ऑफ वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इधर ही आएगा प्लॉट, V2 इधर आएगा और P2 विल अगेन लाइक दिस। सो ये दोनों के स्टेट के बीच में जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, एक लीनियर पाथ फॉलो करेगा। क्यों, प्रेशर और वॉल्यूम जो है, जो प्रेशर है वो लीनियरली बढ़ रहा है वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि यहां पर प्रेशर बढ़ेगा कैसे, क्योंकि एयर तो एक्सपेंड कर रही है। तो आपको ये समझना होगा कि यहां पर आप हीट भी दे रहे हैं जिसकी वजह से उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, पर ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा था तो पिस्टन एक्सपेंड होगी, है ना। लेकिन पिस्टन एक्सपेंड हो रही है और एक प्रेशर बाहर से एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि बढ़ता जा रहा है ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द पिस्टन। ड्यू टू दैट ओनली, ड्यू टू दिस फोर्स ओनली द प्रेशर विल इंक्रीज। और ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कैसे इंक्रीज करेगा, है ना। तो अब हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में समझा था कि जो एरिया अंडर द कर्व और लाइन ऑन पीवी डायग्राम, क्या बोल रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी डायग्राम will give the work output। वर्क आउटपुट हो सकता है या इनपुट हो सकता है ना। और प्रोसेस किधर की तरफ फॉलो कर रहा है, एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रोसेस किधर की तरफ जा रहा है, 1 to 2 की तरफ, है ना। सो ये जो एरिया है, दिस एरिया अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये हमें क्या देगा, टोटल वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जो हमें निकालना है। तो अगर मैं इसको W12 से रिप्रेजेंट करता हूं तो दिस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर लाइन 1 2, यस, एरिया अंडर लाइन 1 2, यस। सो इसको, ये क्या है, एक ट्रेपोजोइडल बन रहा है, यस। सो ये एक ट्रेपोजोइडल है, ट्रेपोजोइडल का एरिया हमें पता है, वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द एरिया। अगर आपको नहीं पता हो तो ये ट्रेपोजोइडल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है, दैट इज इफ द लेंथ ऑफ दिस इज L1, दिस इज L2 and this length is delta V, which length, this length, this is base of the trapezoidal। so क्या होगा, L1 plus L2 into delta V, ओके। ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। सो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं अपनी टर्म्स में, देन L1 क्या होगा, P1 के बराबर, यस। सो वी कैन राइट P1। L2 किसके बराबर होगा, दैट विल बी दिस P2। so we can write P2 into delta V। क्या है, डेल्टा V है चेंज इन दी वॉल्यूम, सो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम में चेंज आया। तो चेंज कितना आया होगा वॉल्यूम के अंदर, ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, V2 हमारे पास नहीं, V1 हमारे पास नहीं, है ना। देखिए आपको V1 दिया है क्या, कोई वॉल्यूम नहीं दिया है, लेकिन आप चेंज ऑफ वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कैसे,
चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, जितना पिस्टन ने यहां से यहां तक वॉल्यूम को स्वैप किया होगा, है ना, जितना वॉल्यूम एक्सपेंड किया होगा, वॉल्यूम क्या हो सकता है, ये एरिया ऑफ द पिस्टन, है ना, ये एरिया इनटू दिस लेंथ विल बी द वॉल्यूम। यस, सो ये हमारे पास है, तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द पिस्टन, वी कैन राइट दिस एपी इनटू द लेंथ ऑफ द दैट लेंथ द पिस्टन कवर्स, है ना, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो वो किसके बराबर होगी, वो इसके कंप्रेशन के बराबर होगी, जितना ये कंप्रेस हुआ उतना ये एक्सपेंड हुआ। क्लियर, सो ये आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, P1 नहीं, P2 नहीं, AP है, X है। सो हमें प्रेशर्स निकालने होंगे। सो इनिशियल प्रेशर, पहले इनिशियल प्रेशर निकालते हैं। So initial pressure will be calculated as, कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे P1, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पिस्टन ड्रॉ करते हैं, यही करते आए अब तक। और फ्री बॉडी डायग्राम पिस्टन का जब हम प्लॉट कर रहे हैं और हम इनिशियल प्रेशर निकाल रहे हैं, तो इस समय स्टेट क्या होगी 1, और स्प्रिंग फोर्स होगा क्या, नो, वाई, बिकॉज एट दिस पॉइंट स्प्रिंग जो है वो ना तो कंप्रेस्ड है ना एक्सपेंड है, वो अपनी फ्री लेंथ पे है, तो तब वो कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेगा। सो दिस इज द फोर्स अप्लाई बाय द वेट ऑफ द पिस्टन प्लस द फोर्स अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, and the force against this is what, by the air, which is initially, so I am writing this F air 1, so pressure will be F air 1 divided by AP. Yes, clear. Now we need to find out F air pressure, which is initially, so this can be calculated by using Fy is equals to piston, पिस्टन को स्टैटिक में है, यहाँ पे स्टैटिक में है, तो समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। सो इससे करेंगे तो क्या आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, F ATM के। इसकी वैल्यू निकालिए, वेट कितना होगा, मास इंटू ग्रेविटी प्लस प्रेशर एटमॉस्फेरिक इंटू एरिया ऑफ द पिस्टन, यस और नो, सो ये इसके इक्वल हो जाएगा। नाउ मास ऑफ द पिस्टन इज गिवन विच इज 50 and we know gravity 9.81, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101.325 किलो पास्कल, ये किलो में होता है, तो हम 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्या, 1 स्क्वायर, 0.1 स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं, देन इट विल कम्स आउट टू बी 1286.3 विच इज इन न्यूटन। ये किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। ये इनिशियल फोर्स हो गया। यस, सो प्रेशर निकालना होगा तो क्या आएगा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, दैट इज पाई बाय 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर। क्लियर। नाउ इसकी वैल्यू अगर हम देखें, कैलकुलेट करें, तो दिस विल गिव यू द प्रेशर इनिशियल विल बी इक्वल टू व्हाट, 163.77 kilo pascal. So this pressure will comes into किलो पास्कल। ठीक है, यूनिट क्या आएगी, किलो पास्कल। तो ये आपका इनिशियल प्रेशर हो गया, जिससे ये सब्जेक्टेड है। अगर मैं फाइनल की बात करूं, फाइनल प्रेशर, सो फाइनल प्रेशर क्या होना चाहिए, अगेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, we will use the FBD of piston at state 2. yes, so this is state 2। यहां पर अगर मुझे उसका FBD कैलकुलेट करना है, तो सारे फोर्सेस, अगेन द फोर्स विच इज वेट प्लस F एटमॉस्फेरिक प्लस FS क्या है, स्प्रिंग फोर्स, जो कि वेरी कर रहा है। और इस पॉइंट पे FS किसके इक्वल होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट आप कर चुके हैं, कंप्रेशन कर चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाय द स्प्रिंग इंडेक्स। सो दिस इज F एयर एट पोजीशन 2। सो प्रेशर P2 विल बिकम F एयर एट 2 डिवाइड बाय AP।
Okay, now again what we need to do, Fy is equals to 0. So F air at 2 will give you Fw plus F atmospheric plus Fs. अच्छा, इसकी वैल्यू तो सेम ही आएगी, है ना, इसकी वैल्यू तो सेम ही आएगी। ये कितना आया था, दिस, यस, Fs कितना होगा, k इंटू एक्स, है ना, और k कितना है, k है 10 इंटू 10⁻³ वाई 10 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना। तो मीटर में इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.05, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1786.3 किलो न्यूटन, सॉरी इट विल कम्स आउट टू बी इन न्यूटन। सो ये आपका एफ एयर एट पोजीशन और एट स्टेट 2 आ जाएगा। सो फाइनल प्रेशर विल बिकम 1786.3 डिवाइड बाय पाई इंटू 4 कर देते हैं, इंटू 0.1 स्क्वायर। सो दिस pressure will comes out to be 227.34 kilopascal. Again the pressure will be in kilopascal. So next we need to find out the work done. Work done will comes out to be 1/2 into the pressures, summation of pressure. मैं दोबारा लिख देता हूं उस फॉर्मूले को, that is P2 into AP into X. एक्स अगेन सेम ही है ना, क्योंकि ये पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। बाय राइटिंग ऑल दी वैल्यूज 163.77 प्लस 227.34 इंटू π/4 इंटू 0.1 स्क्वायर इंटू 0.05। सो ये वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे और वी विल फाइंड द वैल्यू, सो इट कम्स आउट टू बी 76.4 किलो, सॉरी इट विल कम्स इनटू किलो जूल नॉट वॉट, है ना। ये क्या है, ये किलो पास्कल में है और ये पूरा वॉल्यूम है, तो ये किस में है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये किस में बन जाएगा, किलो जूल, ठीक है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि ये जो वर्क है वो एयर ने किया होगा पिस्टन को एक्सपेंड करने में, ठीक है। अच्छा, अगर इस वर्क को आपको मैं और अच्छे से, और इसको आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आप करके देखिएगा। ये वर्क बेसिकली किस किस में गया होगा ये वर्क दो वर्क के बराबर होगा, विच इज W2, W1 किस केस में, देखिए हमने पीवी डायग्राम ड्रॉ किया था। अगर मैं कहूं कि एरिया अंडर दिस कर्व और ये प्रेशर वो प्रेशर है, यहां पे आपको दो कर्व मिलेंगे, ये देखो, ये इस एरिया को मैं दो एरियाज में डिवाइड कर सकता हूं। एक एरिया क्या है मेरे लिए, दिस वन, एंड द अदर वन इज दिस टू। ये बेसिकली क्या है, ये वो वर्क है जो स्प्रिंग फोर्स को कंप्रेस करने में एयर ने किया, है ना। एयर ने दो काम किए होंगे, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेयर को धकेलने में, एक्सपेंड करने में। यहां से अगर यहां पर एयर नहीं होती तो क्या हमारी यहां पे भी एयर होगी ना, एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एयर को उसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर यहां पर एयर नहीं होती, वैक्यूम होता, तो एयर को ये वर्क नहीं करना पड़ता, है ना, इस प्रेशर के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना पड़ता, तो वर्क डन रिड्यूस हो जाता। सिमिलरली यहां पर वेट ऑफ द पिस्टन है ना, तो ये जो वर्क है, ये फर्स्ट वर्क किस में जाएगा, ये कांस्टेंट प्रेशर की कॉरस्पॉन्डिंग वर्क है। कौन सा कांस्टेंट प्रेशर, वो प्रेशर जो कि पिस्टन और एटमॉस्फेयर को एक्सपेंड और उसको डिस्प्लेस करने में एयर को करना पड़ा, है ना, एयर को वो वर्क करना पड़ा। और ये वो वर्क है जो कि पिस्टन को स्प्रिंग को कंप्रेस करने में करना पड़ा, ठीक है। सो जो स्प्रिंग को कंप्रेस करने में करना पड़ा, उसको आप
वो वर्क कहां जाएगा, वो स्प्रिंग की एनर्जी में चला जाएगा। यस और नो भाई, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी आपने एक्सपेंड की इन दी फॉर्म ऑफ वर्क, और वो वर्क जाकर के किस में स्टोर हो गया, स्प्रिंग में फोर्स हो गया, स्प्रिंग में स्टोर हो गया। किस फॉर्म में, उसकी एनर्जी की, स्प्रिंग एनर्जी की फॉर्म में, जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते हैं हम, है ना। सो अगर आप इस वर्क की बात करें तो ये P1 के कोरस्पॉन्डिंगली चेंज इनटू वॉल्यूम, जो वर्क होगा ये उसके बराबर होगा, प्लस ये किसके बराबर होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। के एक्स कितना, ये। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, दिस विल कम्स अगेन इक्वल्स टू दिस, अंडरस्टैंड। सो ये किसके बराबर आ जाएगा, अगेन इसके बराबर। so that is how the energy balance will help you to find out the interaction of energies, है ना। आप चाहे ऐसे कैलकुलेट करें, चाहे इस मेथड को यूज करें, आंसर विल बी सेम। ओके, so now comes to next example. This is basically based on the first law of thermodynamics for open system. Okay, we'll read the statement. A turbine operates under steady flow condition. Which condition, steady flow condition, receiving steam at the following state: pressure, temperature, enthalpy, velocity and elevation is given at the inlet state. The steam leaves the turbine at following state, यानी कि steam की जो exit conditions है वो दी गई हैं। heat is lost to the surrounding at this rate, यानी कि कितनी हीट किस रेट से सराउंडिंग में टरबाइन से एग्जॉस्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, वो दी गई है। इफ द रेट ऑफ द स्टीम फ्लो थ्रू द टरबाइन इज दिस, मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम गिवन है, व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द टरबाइन इन किलोवाट, वी नीड टू डू दैट। सो गिवन वैल्यूज आर, अगेन हम वही करेंगे, गिवन वैल्यू क्या दी है, इनलेट पे हम लिखे, इनलेट किसका, टरबाइन का, है ना। सो प्रेशर इज 1.2 मेगा पास्कल, temperature is what, that is 188 degree Celsius, enthalpy is what, 2785 किलोजूल पर केजी। अच्छा, ये जो वैल्यूज होती हैं इनको लिख लेने से क्या होता है, ये वैल्यूज लिख लेने से हमें पता रहता है कि वैल्यू बार बार क्वेश्चंस में नहीं जाना पड़ता, है ना। तो जो हमारा टाइम है वो सेव हो जाता है, ऑल्दो हम, और टाइम तो सेव होगा ही होगा, हम गलती नहीं करेंगे, है ना, इसलिए हमेशा लिख लेनी चाहिए। आउटलेट पे क्या गिवन वैल्यूज है, दैट इज प्रेशर P2 20 किलो पास्कल, एंथैल्पी H2 दैट इज 2512 किलोजूल पर केजी, वेलोसिटी दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड, एलिवेशन दिया है दैट इज डेटम 0 मीटर, एंड द हीट लॉस। अगर हीट इंटरेक्शन को लिखूं, मैं सिर्फ हीट लिखूं, क्यू लिखूं, देन आई हैव टू यूज नेगेटिव साइन। अदरवाइज हमें अगर हीट लॉस लिखेंगे तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है नेगेटिव। मास फ्लो रेट 0.42 kg पर सेकेंड। सो ये तो सारी वैल्यूज हो गई जो कि, नाउ let us draw the diagram of a turbine. This is the typical diagram, symmetric diagram for the turbine. This is the inlet, this is outlet, okay, which is shown by 1, represented by 1 and 2. Flow is taking place in this direction. Now using steady flow energy equation, why, because the flow is given as steady, so writing the energy balance, energy in is equals to energy out, सारी एनर्जी इन अगर हम लिख दें, देन मास फ्लो रेट इनटू एंथैल्पी एट द इनलेट, काइनेटिक एनर्जी एट द इनलेट, potential energy at the inlet, interaction of heat, yes, then mass flow rate, enthalpy at the outlet, kinetic energy out at the outlet, plus Z2 potential energy plus W. Now we know सारी energies हमें दी गई हैं
और हमें वर्क आउटपुट और पावर निकालने को कहा है, ठीक है। दिस हीट इज इन रेट फॉर्म। So W can be considered we know that this is a turbine, this is turbine, and turbine will give you work output. So W will become equals to what? Positive work output. Yes. So मैं directly अगर work output की बात करूं, यहाँ पे W को work output से represent कर दूं, तो ये किसके इक्वल होगा? थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. It will give you the enthalpy difference from inlet to outlet plus kinetic energy difference from inlet to outlet plus potential energy difference and the heat loss, है ना. अब वैल्यूज अगर हम पुट करें तो क्या आएगा? मास इज 0.42, एंथैल्पी लिख देते हैं 2785 at the inlet minus at the outlet is what? That is 2512. 2512. So ये हो गया प्लस काइनेटिक एनर्जी 33 वेलोसिटी that is 100 square by 2 plus 9.81 into 6, yes, sorry 3, that is 3 minus 0 तो 3 ही रह जाएगा प्लस ब्रैकेट बंद प्लस 0.29. अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखें कि ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज इन किलो जूल पर केजी, एंड ये जो है अभी जो है वो जूल पर केजी में है ना. तो हमें इसको किलो बनाना पड़ेगा. किलो बनाने के लिए वी कैन डिवाइड बाय 1000 एंड मल्टीप्लाई बाय 1000, और 1000 किस में चला जाएगा? किलो में. सिमिलरली विद दिस, है ना. तो ये W out will comes out to be what? This is 112.5 kilowatt. So this will be the final answer for work output per unit time. और work output per unit time किसके बराबर होता है? पावर के बराबर. So power will be from the turbine is 112.5 kilowatt. So that is how you need to remember, or you need to be very careful about the units of the quantities, है ना. तो इस energies में basically इन questions पे ज्यादा difficulty नहीं होती. They are simply straightforward questions. With the help of this equation you can solve, but the mistake can be done in the form of the units of the energies, है ना. Units of the energies. So ये यूनिट आपको चेक करना होगा कि ये किस में है, so that आपकी सारी यूनिट्स जो हो वो यूनिफॉर्म हो. So that is all for today, and if you feel any problem or doubt related to the solution of numerical or this numerical problems, you can contact or you can comment below. We'll try to solve all the issues, and thank you. We'll meet in next lecture. Thank you.